Hello everyone. In this video, we will discuss about the electric charge and basics of electric charge. So that is our target in this video, and also we will discuss about the electrostatics because our target is to discuss the electrostatics first of all, and means we are discussing the chapter 1 and chapter 2 of the class 12, right? So this is initial basic information about the electric charge. In next video we will discuss about the uh, electric charge and its characteristics, means numericals based on their characteristics. So all these points we will discuss in the means numericals we will discuss into the next video. So first of all we are discussing the theory and what are the characteristics of this electric charge. So first of all we will discuss the electric charge. See, electric charge is nothing but it is the basic property of the material. Like मास, जैसे मास होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है. हाँ, मास हम ऐसा बोलते हैं कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. सो मास की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिफरेंट है, चार्ज की भी कुछ डिफरेंट है, but both are the intrinsic property of the material. It is the internal property of the material. So similar to mass and very much means जैसे हम बोल सकते हैं कि it is a one type of जैसे एक जस्ट एग्जांपल ले हम कि इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. So gravitational force is due to the basic property of the material, that is mass. Same, there is a electrical force, or also we can say that electrostatic force. So electrostatic or electric force is due to the steady charges. So steady charges are also the basic property of the material, and because of this there is a force. This force is also inverse square dependence, means inversely proportional to the square of the distance between the two charges. So electric charge is, we can say that it is the intrinsic property of the material. It is the intrinsic property of the material or basic property. Charge can be positive और नेगेटिव. हम इसके डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं. ये एक छोटा सा टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेनेशन है कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इवन बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन. सो they checked कि what are the force or what are the magnitudes of the force between this type of combinations, and they get the result that there is another property of the material that is called the charge. So charge can be positive or negative. ये साइन कन्वेंशन जनरली हमने दिया है. साइन कन्वेंशन अगर हम किसी को हम लोग नेगेटिव बोल दे और पॉजिटिव बोल दे तो इट इज़ नॉट द मैटर, बट कन्वेंशनली हम लोग यही साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑफ प्रोटॉन while negative charge is of electron. So basically हमने ऐसा एक साइन कन्वेंशन दे दिया है. और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया? बिकॉज उसको हमने फंडामेंटल चार्ज कंसिडर कर लिया है कि बेसिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द मैटर इज समथिंग लाइक दिस, कि दिस टाइप ऑफ बेसिक पार्टिकल्स आर द basic constitution or main constitution of the any material. So that's why we are considering the charge of this type of proton or electron. ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है उसके चार्जेस हमने जो है वो फंडामेंटल चार्ज कंसिडर किए हैं. सो SI यूनिट ऑफ चार्ज
is obviously coulomb. Coulomb is the SI unit of the charge and इसका CGS unit भी हम लिख सकते हैं and this CGS unit is for electrostatics. ये जो हम CGS unit लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, तो ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लिख रहे हैं. Here it is state coulomb. State coulomb is the CGS unit. SI unit is coulomb. So SI unit of charge is coulomb. CGS unit of charge is state coulomb. State का मतलब है stationary. यहाँ पे initially we are discussing the stationary charges. Stationary charges है charges are at rest. This and then we will discuss the force and the effect of these charges on each other. So वो सब discussion हम कैसे consider कर रहे हैं कि उसको हमने स्टेडी चार्जेस मीन्स चार्जेस को हमने स्टेडी कंसीडर किया है, वो मोशन में नहीं है. सो देयर वेलोसिटी इज ज़ीरो. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज ज़ीरो. या बाकी जो उसका आगे डिस्कशन आएगा हम देखते जाएंगे. नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि बेसिक पार्टिकल्स हमने कंसिडर किए हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वी आर कंसिडरिंग दैट इट इज़ द बेसिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द मटेरियल. इवन न्यूट्रॉन को भी हमने फंडामेंटल पार्टिकल में कंसिडर किया है. सो फॉर दिस डिस्कशन वी आर कंसिडरिंग दैट कि फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो ये तीनों को हमने क्या कंसीडर किया है, फंडामेंटल पार्टिकल्स. वैसे तो बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे कंस्टिट्यूशन में भी आ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, बट ये हमारे डिस्कशन क्लास 12 के लिए हम ये तीन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बेसिक पार्टिकल्स या बेसिक कंस्टिट्यूशन हम कोई भी मैटर का कंसीडर कर रहे हैं. सो दिस आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. Electrically neutral, it means actually it consists equal number of positive and negative charges. So obviously net summation is zero. और वहाँ से हमें पता भी चलता है कि we are doing actually algebraic sum of the charges. So that's why we can say that electric charge is a scalar quantity. इसलिए हमने चार्ज को क्या कंसीडर किया है, it is a scalar quantity. सो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई और जिसका भी हम उसका भी जो भी हम समेशन करते हैं, एडिशन जो करते हैं, इट इज़ अ सिंपल अलजेब्रिक सम. सो दैट्स वाई व्हेन वी डू द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस, सो वी आर कंसीडरिंग द पॉजिटिव चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एज नेगेटिव. सो व्हेन वी डू द समेशन वी विल गेट द नेट चार्ज ज़ीरो. और ऐसा ही कुछ यहाँ पे न्यूट्रॉन में भी ऐसा हो रहा है कि अंदर जो चार्जेस हैं उसको हमने समेशन किया तो हमें क्या मिला कि भाई नेट समेशन हमें ज़ीरो मिला. अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या है वो भी एक इंटरेस्टिंग मैटर है. इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट्री पार्टिकल है, बेसिक पार्टिकल है, उसका कोई कंस्टिट्यूशन, बिकॉज वही बेसिक कंस्टिट्यूशन है. लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम अंदर कुछ देख सकते हैं कि भाई अंदर वो किससे बना हुआ है, उसका कंस्टिट्यूशन क्या है. सो एक्चुअली कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन and neutrons, constitution of protons and neutrons are actually quarks. ये क्वार्क्स भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स ही है. और जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूक्लियॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जैसे हम 11th में स्टार्टिंग में स्टडी करते हैं, उसको क्वार्क्स फोर्स भी बोला जाता है, बिकॉज क्वार्क्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूशंस ऑफ दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड एक्चुअली दिस क्वार्क्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो दिस आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्वार्क्स. उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसका इंडिविजुअल कंस्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं. इंडिविजुअल कंस्टिट्यूशन क्या है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टडी करने की ट्राई करेंगे. जैसे प्रोटॉन की बात करें
तो प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो सबसे पहले तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का चार्ज हम लोग देख लेते हैं कि चार्ज क्या है। सो अप क्वार्क के लिए चार्ज है +2/3e +2/3e। अब ये E क्या है? अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट इज E? तो एक्चुअली E इज़ द फंडामेंटल चार्ज। अब वो किसका हमने कंसीडर किया था? हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वी आर कंसिडरिंग द चार्ज ऑफ दिस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एज अ फंडामेंटल। तो प्रोटॉन का चार्ज हमने +E कंसीडर किया है, ये रहा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने -E मीन्स नेगेटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है। अब ये E क्या है? तो E हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से निकाला है कि E बेसिक वैल्यू ऑफ द चार्ज, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो इट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने उसका चार्ज निकाला है। सेम प्रोटॉन के लिए भी ऐसे ही सेम चार्ज है, बट इट इज़ पॉजिटिव +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो सेम है, बट चार्जेस का जो टाइप ऑफ चार्जेस है वो अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हमें एक यहाँ से डिफरेंस मिला, हमें एक अलग सा कुछ यहाँ से देखने को मिला। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। ओके, उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। एक्चुअली बाद में हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कोई भी बॉडी हो उसके ऊपर जो चार्ज होता है इट इज़ ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, इफ़ देयर आर प्रोटॉन देन इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसको एक्चुअली बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज है। जैसे अब बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनिशियली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे, बिकॉज मैक्रो अगर हम लार्ज स्केल पे देखें तो क्वांटाइजेशन वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वैलिड फॉर स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब क्या है? एटॉमिक लेवल पे है, जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर आयंस की बात करें, या फिर न्यूक्लियस के अंदर की बात करें, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम ऐसा बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। क्या बोला गया है इसको? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इट इज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल, एंड इट इज़ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। सो माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए हमने ऐसा एक फॉर्मूला निकाला कि भाई Q इज इक्वल टू NE। दिस Q इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, N का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल, एंड E का मतलब तो आप लोग सामने ही देख रहे हो कि E मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज बोथ हैव सेम वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम है। तो पोलैरिटी हमने देखा यहाँ पे अपोजिट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इट डिपेंड्स, अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली देर आर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉडी, एंड इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट मीन्स देर आर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द बॉडी। Obviously here we can say that where n is equal to 1 2 3 up to so on। तो ये एक बात यहाँ पे होगी कि इट इज़ इन द इंटीग्रल मल्टीपल। इसको डिस्क्रीट नेचर भी बोला जाता है। दिस इज़ द डिस्क्रीट नेचर ऑफ द चार्ज। सो ये डिस्क्रीट नेचर हो गया। कंटिन्यूअस हम बाद में देखेंगे। सो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल है, लेकिन वो कहाँ पे होता है? लार्ज स्केल पे होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है।
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन कंसिडर कर सकते हैं. इट इज़ वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज डिस्क्रीट चार्ज, दिस इज़ फॉर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये डिस्क्रीट नेचर भी बोल सकते हैं हम चार्ज का कि 1 2 3 ये इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज कोई भी बॉडी के ऊपर होता है. अब यहाँ पे देखें हम +2/3e, ये हमारे पास कुछ नया आया है. उसमें अगर आप देखो तो आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल तो है नहीं. देखो यहाँ पे 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2/3 है. एक्चुअली ये क्वार्क्स के लिए है और हमने ये क्वांटाइजेशन किसके लिए लिया है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए. तो इस टाइप के चार्जेस के लिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये क्वांटाइजेशन डिस्कस किया है. उसके अंदर जो चार्जेस हो गए या उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऑब्वियसली उसका कुछ जो मल्टीपल होगा वो डिफरेंट होगा, बिकॉज हमने यहाँ से इंटीग्रल मल्टीपल्स कंसिडर किया है इस बेसिक लेवल से आगे के लिए. उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑब्वियसली कुछ रेशियो में, ये फ्रैक्शन में ही होगा, तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना है. ये सिमिलर देखो फार्मूला तो ऐसा ही कुछ है कि इट इज़ द 2/3 ऑफ ई, बिकॉज वो तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 1 तो होगा नहीं, बिकॉज 1 से तो कम होगा या फिर 1 से थोड़ा सा लेस हो सकता है, या उसका नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है. तो अप क्वार्क का चार्ज कितना है, तो अप क्वार्क का चार्ज है +2/3e. अब वहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. एक दूसरा टाइप का भी क्वार्क है, डाउन क्वार्क. डाउन क्वार्क का चार्ज, तो ऑब्वियसली डाउन क्वार्क का चार्ज होगा -1/3e. एक्चुअली बेसिकली तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार. लेकिन अभी के लिए हम ये 2 स्टडी करेंगे, बिकॉज हमें ये 2 चाहिए इसमें. और बेसिकली भी हमें इस तरह अभी तो यहाँ पे 2 क्वार्क्स की ज़रूरत है. तो अप क्वार्क के लिए +2/3e, डाउन क्वार्क के लिए -1/3e. अब इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, प्रोटॉन का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं. प्रोटॉन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स. उसमें 2 अप क्वार्क रहेंगे और एक डाउन क्वार्क. तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो ऐसा बनेगा, अप एंड डाउन, इस तरफ से उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. अगर हमें नेट चार्ज निकालना है, नेट चार्ज ऑन द प्रोटॉन, सो ऑब्वियसली Q इज इक्वल टू, Q मीन्स नेट चार्ज, हियर U प्लस D. हम क्या कर रहे हैं, उसका जो चार्ज है उसको हम ऐड कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, इसलिए देखो इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है, बिकॉज वो उससे बना हुआ है इसलिए. लेकिन फाइनली इंटीग्रल मल्टीपल में देखो आ जाएगा आंसर. सो दिस इज 2/3e प्लस 2/3e एंड दिस इज -1/3e. सो ऑब्वियसली दिस इज 4/3e माइनस 1/3e. LCM 3 होगा, फाइनल आंसर विल बी E दिस. तो देखो ये 1 यहाँ पे मल्टीपल में क्या है, 1 है. देखो ये फार्मूला आ जाएगा, इफ़ वी टेक n इक्वल टू 1 then it is Q इक्वल टू E, and obviously E is nothing but it is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. सेम हम इस तरह से न्यूट्रॉन का भी कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, जैसे हमने प्रोटॉन के लिए लिया. सेम we will find for the neutron. न्यूट्रॉन जो है इट इज़ सेम, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, अप डाउन डाउन. तो इस तरह से हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें दिया है, तो उस तरह से हम उसका एडिशन या एल्जेब्रिक सम हम लेंगे. सो Q इज इक्वल टू मीन्स नेट चार्ज ऑन द प्रोटॉन, सो इट इज़ 2/3e माइनस 1/3e माइनस 1/3e, बिकॉज D डाउन क्वार्क के लिए चार्ज कितना है, -1/3e. सो Q इज इक्वल टू 2/3e माइनस 2/3e. ऑब्वियसली हम एडिशन करेंगे दोनों का, -1/3 -1/3, तो इट इज़ -2/3. ऑब्वियसली Q इज इक्वल टू 0 बिकॉज न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे, और ये हमने एक बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया. नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स और बाकी सब डिस्कस करेंगे.